नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब तक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा हो चुका है। चाशुंबे के लिए तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 74 से 84 पैसे का इजाफा किया, जबकि डीजल की कीमत में भी 75 से 85 पैसे का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे फी लीटर और डीजल 96 रुपए 67 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। Comment without looking at the global picture and what this military operation has done. Sir, at the height of COVID, and I talk about March 2020, gas prices were $19.56 a barrel. They went up in 2021 to $60 to $80. On 24th February, when the military action took place, suddenly they shot up to $92, then up to 124, went up to 130. Sir, are we the only country affected by this? I have with me here, sir, and I can still give you the same on gas prices. We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days when the international price has shot up. Now, I have something, sir. Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, Sri Lanka 55%, India sir 5%. Yes, Our percentage increase is 1/10 Yes, of what Mr. it is elsewhere. Now- Similarly, I could do for gas, sir. Sir, I thank you very much for the opportunity to be able to participate in this discussion on Rule 193. I think a lot of comment without looking at the global picture and what this military operation has done. Sir, at the height of COVID, and I talk about March कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस और कुछ दीगर अपोजिशन जमातों ने चाशुंबे को महंगाई के मामले पर लोकसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा में वक्फे सवालात खत्म होते ही कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और दीगर अराकीन महंगाई को कम करने के सिलसिले में ऐवान के वसत में आ गए। महंगाई कम करने से मुतालिक हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ देर बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन जमातों के हंगामे के दरमियान पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अरकान से बहस में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि मरकजी वजीर हरदीपुरी ने इस मामले पर ऐवान के सामने अपना बयान दिया था। अरकान को इस मामले में हंगामा नहीं करना चाहिए और ऐवान की कार्रवाई में मुस्बित ताउन देना चाहिए। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मुल्क में हेट स्पीच दिए जाने पर पाबंदी लगाए जाने का मुतालबा किया। खड़गे ने जरूरी दस्तावेज ऐवान के मेज पर रखे जाने के बाद कहा कि मुल्क के कुछ हिस्सों में नफरत अंगेज तकारीर की जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। No, even LOP also, he can only mention, he cannot speak on this because others also. No, speech is one sentence. Sir, I have given a notice under Rule 267 regarding the rising instances of hate speech against minorities in the country and also the harassment done to the journalists, particularly the Hindustan Gazette, News Laundry, the Quint, Article 14, etc. And this is going on, and Swamijis are speaking and instigative speeches they are giving. Not only that, the right from Haridwar to Delhi on Sunday, one Swami said that all Muslims should be butchered. And this will not go on record. India, No community name will go on record. Please, I have not. these are his words. No, we should not quote his words now if he has uttered a meaningless word. And they are creating, sir.
again raising it in the house, and then having discussion who spoke what. That is not going to solve the problem. Thank you, Karkeji. So, I have not allowed, and nobody should indulge in hate speech against any community, minority or majority. Communities should not be taken into this thing, and nobody should make any speech against anybody. That's all. Sri Ajay Pratap. No, even LOP also, he can only mention. He cannot speak on this because others also. Please. No, speak. One sentence. वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने चाशुमे के रोज राज्यसभा में कहा कि जिलेवारी केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। ऐवान में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़मीनी सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी खास जगह पर केंद्रीय विद्यालय खोलने का बुनियादी अंसर मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन की तादाद है। जिलावारी केंद्रीय विद्यालय खोलने की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। Sai Reddy. Chairman, sir. Sir, according to the norms, Kendriya Vidyalaya norms, every district in the state will have one Kendralaya, the Kendriya Vidyalaya, and it will be eventually increased the number to two Kendriya Vidyalayas. Recently, Andhra Pradesh government has increased the number of districts from 13 to 26. I would like to know from the Honorable Minister whether the additional districts that have been created, the 13 districts additionally that have been created, will have Kendriya Vidyalayas, and what is the timeline within which the Government of India will set up the Kendriya Vidyalayas in these new districts? Thank you, Vijay. Thank you. उपाध्यक्ष महोदय, विजय साई रेड्डी जी ने जो अभी कहा आंध्र प्रदेश में जिला की संख्या बढ़ा है, न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स, when Government of India is going to add on the schools. Let me inform this August House, there is no precondition, there is no policy of opening a new school district-wise. The primary condition of opening up a new central school is where the central government employee will be in a good number to facilitate that. This is the primary criteria of opening up the new central school. So, district-wise central school is not a policy of Government of India. Thank you. Susmita Devji. Question है आंध्र प्रदेश। मैं आंध्रा का ही पूछूंगी सर। Please. मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट की डिपार्टमेंट सर, one important sector is the public sector undertaking, which also has Kendriya Vidyalayas for employees. So, public sector undertakings, many are being sold, and the education of those children are hanging in the middle. आसाम में ऐसे बहुत केसेस है, कच्चा पेपर मिलता। क्या आंध्रा में ऐसे कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहां आपने उसको बेच दिया है और केंद्रीय विद्यालय बंद होने के कारण उन बच्चों के एजुकेशन सफर हो रहा है? धन्यवाद। ऐसा कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कहीं खुलने का या बंद होने का। केरला में एक इश्यू ऐसा है, लेकिन आंध्र में ऐसा कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। माननीय थंबीदुरई जी। Question is on Andhra. Yes, I am, because Andhra is near. No, sir. Thank you. Sorry. Question number 364. Sir, Please. It's on Andhra. Yes, I am going to answer. Please. Sir, land is the state subject. That is what our Andhra members raised. The land is given by the government to the Kendriya Vidyalaya. Because they are asking, when they are asking Kendriya Vidyalaya in Andhra also, they want land. Land is state subject. They are raising. Thank you. Whether the minister will come forward to implement that program early. Answer of my colleague, Government of Andhra Pradesh has given land in 1718. 80% of those two schools completed. This is our polite answer.
मुल्क में बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर अपोजिशन भी लगातार मोदी हुकूमत को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर हमला बोलते हुए इल्जाम लगाया है कि पार्टी ने इंतखाबी जीत को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने महंगाई के ताल्लुक से एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा कि इवेंट वाली सुबह महंगाई का डेंट, आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 16 दिनों में पेट्रोल डीजल में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि झूठे वादे करने का इल्जाम उन्होंने आयद किया और कहा कि झूठे वादे से इंतखाबी धोखा, फिर अवाम पर ही लूट का जोर। मईशत खुलने के साथ ही दालें महंगी होने लगी हैं। बीते एक महीने में दाल और दीगर अशिया की कीमतों में 16% तक इजाफा हुआ है। स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल खुलने के साथ ही टूरिज्म बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट की मांग भी बढ़ी है। इस बीच डीजल के दाम बढ़ने से लॉजिस्टिक का खर्चा भी बढ़ा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स में अरहर यानी तुअर की दाल की फसल 30% तक कम हुई है, या इसका अंदेशा जताया जा रहा है। बीते एक महीने में सबसे ज्यादा 16% काबुली चने के दाम बढ़े हैं। अभी ये 110 रुपए फी किलो मिल रहे हैं, जो एक महीना पहले 95 रुपए फी किलो मिल रहे थे। ऐसे ही देसी चना भी 5000 रुपए से बढ़कर 5100 रुपए फी क्विंटल हो गया। इस बीच दालें 7 से 10% महंगी हुई हैं। अरहर यानी तुअर की दाल 125 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि सबसे सस्ती बिकने वाला चने की दाल 80 रुपए फी किलो तक बिक रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो कारोबारी हैं, जो ताजिर हैं, उनके मुताबिक अरहर सिर्फ एक ऐसी दाल है जिसका काफ़ी स्टॉक बचा हुआ है। मार्च से मई के बीच इसकी कंज्यूमर स्टॉकिंग चलती है। इसके चलते सेंटीमेंट अमूमन मजबूत रहता है। इसी वजह से दामों में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आइंदा दिनों में दालों में और दीगर अशिया में बहुत ज़्यादा इजाफे का इम्कान है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पार्लियामेंट में CRPC अमेंडमेंट बिल को लेकर काफी वजाहत की। उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परीक्षण करने और उस संबंध और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसको 4 तारीख को लोकसभा ने पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य एक 100 साल पुराने विधेयक में आज के जमाने के अनुरूप टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ है उसका समावेश करना, इन्वेस्टिगेशन को बल देना और दोष सिद्धि के प्रमाण को ज्यादा से ज्यादा हो सके, इस प्रकार ये डेटा को स्टोरेज कर इसका एनालिसिस कर इसका उपयोग कर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाना। सभापति महोदय, जब तक किसी भी देश में दोष सिद्धि का प्रमाण नहीं बढ़ता है, तब तक कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। पुलिस या कानून प्रवर्तक एजेंसियां कितने भी लोगों को कानून के दायरे में पकड़ कर लाए, मगर जब तक अदालतों में उनके दोष को सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उनको सजा नहीं होती। और कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो स्वभावगत रूप से अपराध करते हैं। अपराध को जिन्होंने पेशे के रूप में भी स्वीकार किया है, ऐसे अपराधियों को जब तक सजा नहीं कराते, ये सिलसिला टूटता नहीं। दूसरा, जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, अपराध करने से सजा होती है, संदेश भी समाज के अंदर नहीं जाता।
और जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, कानून के अनुसार जीने वाले समाज के बहुत बड़े तबके में कानून और व्यवस्था और सरकार के प्रति, संविधान के प्रति आस्था की भावना को हम खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए निहायत जरूरी है कि दो सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इसके लिए अंग्रेजों के समय में फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो और स्विगी चाशुम्बे के रोज कई बड़े शहरों में कुछ देर के लिए डाउन हो गए। ये ऐप लंच के वक्त डाउन हुए जब ऑर्डर्स की तादाद आमतौर पर ज्यादा होती है। कई यूजर्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ऐप के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि फूड ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। फूड ऑर्डर करने के दौरान समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ये मैसेज दिखाई दे रहा था। एक ग्राहक की शिकायत का जवाब देते हुए जोमैटो केयर ने ऐप डाउन से हुई तकलीफ के लिए माफी मांगी। जोमैटो इसे उन्होंने टेम्पररी ग्लिच बताया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खानदानी सियासत पर तनकीद करते हुए कहा कि खानदानी सियासत जमहूरियत की दुश्मन है और उसे फरोग देने वाली जमातों ने हमेशा वोट बैंक की सियासत की है। मोदी ने वर्चुअल जराये से चाशुम्बे के रोज बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी कारकुनों, वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कई दहाइयों तक कुछ सियासी जमातों ने सिर्फ वोट बैंक की सियासत की। कुछ लोगों को ही वादे करो, ज्यादातर लोगों का इस्तेसाल करो, तफरीक, करप्शन, ये सब वोट बैंक की सियासत का साइड इफेक्ट था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस वोट बैंक की सियासत को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि मुल्क के शहरियों को इससे मुहतात करके उसके नुकसानात से आगाह करने में भी कामयाबी हासिल की है। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है
उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। रियासत में मजहबी मामलात से मुतालिक पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कर्नाटका के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने मंगल को कहा कि हुकूमत के सामने सब बराबर हैं और मसाजिद में लाउड स्पीकर्स को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी फर्द या तंजीम को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। बोम्मई ने मजीद कहा कि हुक्मरान बीजेपी को अवाम का आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में मजीद अवाम दोस्त तकरीबात को मुनक्किद करेंगे क्योंकि महज बयाना देने से बहरान हल नहीं होगा। मंदिरों और मजहबी मेलों में मुसलमान दुकानदारों या ताजिरों और मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी के बढ़ते हुए मुतालबे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2001-2002 में मंजूर किए गए हुक्म और उन वाक़यात के पीछे बहुत सी चीज़ें हैं। हुक्मरान बीजेपी ने कोई हुक्म मंजूर नहीं किया। हम सब कुछ जहन में रखेंगे और फैसला करेंगे। अज़ान के बारे में वजाहत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अदालत उज़्मा इस सिलसिले में पहले ही हुक्म दे चुकी है और एक हुक्म ये भी है कि उसके अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। 1 डेसिबल आवाज़ की शिद्दत की पैमाइश की हद मुकर्रर है और 1 डेसिबल मीटर खरीदने का भी हुक्म है। सीएम बोम्मई ने मजीद कहा कि वो ये काम है जो सबको एतमाद में लेकर करना है, इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मुल्क की सियासत में चारशंबे को नया मोड़ देखने को मिला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और एनसीपी सरबराह शरद पवार के बीच मुलाकात हुई। ये मुलाकात दिल्ली में हुई और करीब 20 मिनट तक चली। जराये के मुताबिक दोनों के बीच महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात को लेकर अभी कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। हालांकि कहा जा रहा है कि पवार कुछ देर में या फिर आज रात तक इस मामले पर बयान दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर ने वजीर दाखिला माफ कीजिएगा इस खबर को इस खबर पर हम कुछ देर में लौटेंगे। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के 2 कायदीन, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान हिमाचल प्रदेश में है। उन्होंने आज वहां एक रोड शो किया और लोगों से अपील की कि दिल्ली और पंजाब के बाद हिमाचल भी आम आदमी पार्टी को सौंपा जाए ताकि वहां पर भी एक अच्छी सरकार बनाई जा सके। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए। 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। आपको यकीन नहीं होगा ना, आपके यार दोस्त रिश्तेदार पंजाब में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछना, किसी थाने में चले जाओ पंजाब में, किसी रजिस्ट्रार तहसीलदार के किसी दफ्तर में चले जाओ काम कराने, किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। अब क्यों? अगर हमने 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 75 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार आदमी हैं, कट्टर ईमानदार हैं लोग। पहले पैसा नीचे से ऊपर जाता था मुख्यमंत्री तक, अब ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, पैसा चलना बंद हो गया। जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा। अब यह करना ही नहीं करना।
दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में आपके यार दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, दिल्ली फोन करके पूछ लेना, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली के अंदर। हिंदुस्तान में कोविड-19 के नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। कोविड का हाइब्रिड म्यूटेंट स्ट्रेन, जिसे XE का नाम दिया गया है, मुंबई में पाया गया है। हालांकि नए वेरिएंट वाले मरीजों में अब तक कोई संगीन अलामत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक XE वेरिएंट को 2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 का हाइब्रिड स्ट्रेन कहा जाता है। XE वेरिएंट का पहला केस 19 जनवरी को ब्रिटेन में ट्रेस किया गया था। इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ओमिक्रॉन की XE इन्फेक्शन के खिलाफ इंतबाह जारी किया है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक टप्पा वेरिएंट के एक मामले का भी पता चला है। रूस यूक्रेन जंग का आज 42वां दिन है। इसी बीच यूक्रेन के बुचा शहर में हुए मासाकेर यानी कत्ल खून, इसका जो मासाकेर का जो मामला है, इसको लेकर वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर ने कहा है कि खून बहाकर और मासूमों को मारकर किसी भी मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान इसमें एज ए मीडिएटर बात करता है तो इसमें खुशी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि खूरेजी करते हुए किसी भी मसले को हल नहीं किया जा सकता। Strive to ensure that foreign policy is a subject of maximum consensus in the country. Certainly that should be the case with a subject as important as Ukraine. And I was glad to see yesterday that was the case. I was also very pleased that 4 ministers spoke on this matter, because these ministers went to the neighboring countries. They participated in the evacuation operations and they brought a ground perspective, which was very important for the House to listen to. Honorable members would all agree that India's approach should be guided by our national beliefs and values, by our national interest, and by a national strategy. Let me dwell on each of these aspects before addressing some of the specific issues that were brought up by honorable members yesterday. What is India advocating in Ukraine? We are, first and foremost, strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. आखिर में बात श्रीलंका की। श्रीलंका में बिगड़ते हालात के बाद सदर गोटबाया राजपक्षे ने मंगल की आधी रात को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 1 अप्रैल को ही मुल्क में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। इसके बाद से उन्हें भारी मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा था। मंगल शाम को भी हजारों तुलबानी दारुल हुकूमत कोलंबो में भारी बारिश के बीच वजीर आजम महिंदा राजपक्षे के घर तक मार्च निकला। लगातार गहराते माशी बहरान के बीच मुल्क भर में चीन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसने चीन को सब कुछ बेच दिया। चीन दूसरे मुल्कों को उधार देकर उनका सब कुछ खरीद रहा है। श्रीलंकाई फौज ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को कड़ी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।